Hello everyone, welcome back to my channel. This is your host Miss Vocabulary, and today we are going to discuss about 5 words that are very difficult, that are considered very difficult in English language. So without wasting any time, let's get into it and see what are those words. In this part we will discuss 5 words, and in the coming part, the next part, part number 2, we will discuss about more 5 words. So let's get into it. So coming to our first word, the first word here is philanthropist. Alright, it is pronounced philanthropist. The second one, entrepreneur. एंटरप्रेन्योर ब्रिटिश एक्सेंट में हम इसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, इंडिया में हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बट इट्स प्रोनाउंस एंटरप्रेन्योर. ऑलराइट, द यू आर इज साइलेंट, सो यू pronounce it entrepreneur. The next one is bombastic. Now, and the next one is camaraderie. Fortuitous. TU को हम चू बोलेंगे, fortuitous. Alright, so without wasting any time, now let's know the meaning of it. Coming to our first word, the first word here is philanthropist. The meaning of philanthropist is a person who is rich and he is willing to do welfare of the poor people, usually by donating a large amount of money. जब कोई बहुत ही rich person गरीब इंसान को बहुत ही लार्ज अमाउंट में जब डोनेशन करता है, उसको हम फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो जो फिलांथ्रोपिस्ट होता है वो जो पुअर पीपल होते हैं उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, एंड दे यूजुअली डोनेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर वेलफेयर. उनके भले के लिए वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में मनी या फिर फंड्स देते हैं, डोनेट करते हैं. ऑलराइट, तो फिलांथ्रोपिस्ट आप समझ गए होंगे, अ पर्सन who donates large amount of money. So philanthropist is a person who donate a large amount of money for the welfare of the poor. Now coming to our second word, the second word here is entrepreneur. Entrepreneur is a person who builds up a business, who sets up a business, taking financial risk, hoping for a profit. एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, अपने जितने भी फाइनेंसेस है उसको लगा के, फाइनेंशियल रिस्क लेके, और इस होप में करता है कि उसको उससे प्रॉफिट होगा. सो आप कह सकते हैं न्यू बिजनेसमैन. So, in short, we understand that entrepreneur is a person who sets up a business, taking financial risk in hope of profit. Profit के लिए वो क्या करता है, फाइनेंशियल रिस्क लेता है, अपने पैसों को रिस्क में लगाता है और एक नया बिजनेस सेट करता है. So, the meaning of entrepreneur, someone who starts business by taking risk. Alright, ये आप समझ गए होंगे. Entrepreneur is a person who sets up a business, taking financial risk in hope of a profit. अपने प्रॉफिट के लिए वो फाइनेंशियल रिस्क लेता है और एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है. Alright, now coming to our third word. The third word here is bombastic. Bombastic आप हिंदी में समझें तो जो एक मुहावरा कहते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे, उसको हम इंग्लिश में bombastic भी बोल सकते हैं. Bombastic means something that sounds very high but the meaning is very small. बहुत ज्यादा आवाज करता है बट असल में उसका जो असर होता है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है. जस्ट लाइक पॉलिटिशियन, हम कह सकते हैं जो पॉलिटिशियन है वो बहुत सारे वादे करते हैं बट वो काम नहीं करते. सो वी कॉल देम बॉम्बास्टिक. और मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आवाज करे
बट उसकी मीनिंग बहुत ही कम हो, उसको हम बॉम्बास्टिक बोल सकते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा प्रिटेंशियस, तो प्रिटेंशियस भी एक तरह से सिनोनिम है बॉम्बास्टिक का, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाए, हु शोज देम वेरी ग्रैंड, जो अपने आप को बहुत ग्रैंड दिखाए, उसको हम बॉम्बास्टिक बोल सकते हैं। Alright, now coming to our fourth word. Our fourth word here is camaraderie. Camaraderie is a very beautiful word और बहुत ही positive word है. So the meaning of camaraderie is the spirit of friendship and loyalty among a group of members. अगर कोई भी कहीं पे भी वर्क प्लेस हो, कहीं पे भी जब एक वहां पे मेंबर्स होते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ मेंबर्स में जो एक लॉयल्टी और फ्रेंडशिप की जो भावना होती है, जो स्पिरिट होती है, उसको हम कैमराडरी बोलते हैं। तो मीनिंग हम इसकी लिख सकते हैं, स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप among members, member of a group। इसको एक बार फिर से समझ लेंगे। So what is camaraderie? Camaraderie is a spirit of friendship and loyalty among a group of members। जब कोई भी कहीं पे भी स्कूल होता है, like suppose you are in a workplace, so you can say I believe I just go there for the camaraderie that we have। मतलब मैं अपने काम पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे हमारे जो ग्रुप है उसमें बहुत ही ज्यादा लॉयल्टी और फ्रेंडशिप है। यहाँ पे हम बॉम्बास्टिक की मीनिंग लिखना भूल चुके हैं, तो इसको लिखते हैं हाई साउंडिंग बट लेस मीनिंग। मीनिंग बहुत कम होती है। Alright, now we will move to our last word of the day. So the last word is fortuitous। Fortuitous मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत लक बाय चांस अच्छी हो जाए। बाय चांस अगर कोई चीज अच्छी हो जाती है या फिर लक से अगर कुछ चीज अच्छी होती है तो उसको हम fortuitous बोलते हैं। Suppose you and your friend are fortuitous because you both went into the same place for vacation। आप दोनों बहुत ही लक बाय चांस हुआ कि आप और आपके फ्रेंड एक ही जगह गए वेकेशन के लिए। So the meaning of fortuitous, you can write it by chance or by luck। जब लक या बाय चांस से कोई भी चीज अच्छी होती है तो उसको हम fortuitous बोलते हैं। Now we will do a brief recap of all the words that we have learned today। So the coming to the first word we read is philanthropist। Philanthropist is a rich person who usually work for the welfare of the people by donating a large sum of money and by giving funds। जब कोई भी बड़ा इंसान, कोई भी रिच पर्सन बहुत ही लार्ज स्केल में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में मनी डोनेट करता है पुअर को, दैट पर्सन इज कॉल्ड philanthropist। नाउ एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेट अप अ बिजनेस, जो एक बिजनेस सेट करता है, टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क लेता है, होपिंग फॉर अ प्रॉफिट, अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए जब वो रिस्क लेता है और नया बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू अवर थर्ड वर्ड। द थर्ड वर्ड इज बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक इज हाई साउंडिंग विद वेरी लेस मीनिंग। हिंदी में समझ लीजिए तो नाम बड़े दर्शन छोटे और प्रिटेंशियस। जब कोई इंसान अपने आप को बहुत हाईली प्रेजेंट करता है, अपने आप को बहुत ग्रैंड प्रेजेंट करता है, बट उनके जो एम होते हैं वो उतने ज्यादा ग्रैंड नहीं होते और इसकी मीनिंग ज्यादा नहीं होती, दैट पर्सन इज कॉल्ड बॉम्बास्टिक पर्सन। नाउ camaraderie मीन अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी अमंग अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। जब कहीं पे भी आपका वर्क प्लेस हो, आपका स्कूल हो, आपकी फैमिली हो, उस ग्रुप ऑफ पीपल में जब एक फ्रेंडशिप होती है और लॉयल्टी होती है एक दूसरे के लिए, दैट इज कॉल्ड camaraderie। नाउ द लास्ट वर्ड fortuitous। द मीनिंग ऑफ fortuitous इज बाय चांस और बाय लक। जब बाय चांस कोई भी चीज अच्छी हो जाती है, that is called fortuitous। So that's all for today। There are more words that I have to tell you, so we will discuss that in the next video। Till then I'm signing off। Thank you for joining me। Please like, share and subscribe my channel। Goodbye।